to be covered. So this is the overview of gate ecology evolution. This will be 2022 ecology and evolution class, right? So this will be 2022, right? So these are the units. If you can see on my screen, the units are being mentioned here. We have ecology, which is a common part, as well as net perspective and gate perspective. So classes will be both the ways, though here it will be taught in detail by the faculty. This will be taken care by Tanya ma'am and Priyanka ma'am and me. Then we have evolution part, which is unit number 2. Three of us will participate in this. Then we have mathematics and quantitative ecology, which will be taken by one of the faculty, Pratik Priyadarshini sir. Then we have behavioral ecologies will be taken by Tanya and me and Priyanka Chaudhary ma'am. Then we have applied ecology and evolution. So small syllabus is there and you can easily catch it out. Those people who are from life science background and have some hesitation towards mathematics, right? So they can easily get through it. And the paper is quite easy, right? It's not that much tough what you believe it. And you can easily conquer it if you are preparing decently well from day one. So without any further delay, I would like to hand over the stage to Tanya ma'am. She will be starting something today. Just a second, guys. Plus, a dedicated Google Classroom will be provided from the same purpose, right? So need not to be worried, right? And we will be solving the papers also, right? Plus, there is a lot of stuff available, and the kit will be sent to each and every individual who is a subscription of the program, right? So, and Tanya ma'am will start today. She's just joining in a second, and then she will start. So just be regular with this, and there will be few common classes like we have some ecology part, and then we have statistics part, which is the common between the two. Like you can see this section 3, apart from few functions and etc. And then we have ecology, so which is at both the places, right? At both the places, so it will be covered decently well. And we started with this environmental science and engineering also, so both the ends you can do the things. So just let me see whether she have joined or not.
Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible? Is my voice audible? Okay, ठीक है. So today we are going to start with the topic which is called as evolution. We are going to start with evolution. Were you able to see my screen whiteboard? दिख रहा है आप लोगों को? Were you able to see the whiteboard? Were you able to see the whiteboard? Is whiteboard is visible to everyone? Is whiteboard is visible? ओके ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है अगर हम बेसिक टर्म्स में समझने की कोशिश करें? एवोल्यूशन होता है किस तरीके से चीज इवॉल्व हुई है. इवॉल्व होना मतलब किस तरीके से चीज एक चीज से दूसरी चीज बनी है. कोई भी चीज का एवोल्यूशन का मतलब है वो कैसे ओरिजिनेट हुई. ओरिजिनेट होना एक चीज होती है. ओरिजिनेट होने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि वो कैसे कैसे उसने अपनी फॉर्म को चेंज किया. अगर हम आज के ह्यूमन बीइंग की बात करें तो बहुत सालों पहले वो ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं था जैसा वो अभी दिख रहा है. उसकी पहले उसकी बैकबोन क्या होती थी, थोड़ी टिल्टेड होती थी, वो उल्ट मतलब टेढ़ा होकर चलता था. बट अभी क्या हो गया है, अभी बिल्कुल स्ट्रेट आपकी बैकबोन हो गई है. सो दीज आर ऑल एवोल्यूशन कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो इवॉल्व हुई हैं, किस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं. सो हमारी यूनिट है एवोल्यूशन जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ द थिंग्स हैव गॉट इवॉल्व. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की कि जो हमारा अर्थ होता है वो कितने साल पहले इवॉल्व हुआ है. अर्थ से भी पहले जो था वो यूनिवर्स था. सबसे पहली चीज जो हम बात करेंगे दैट इज आवर यूनिवर्स कि यूनिवर्स कैसे आया. यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स को आए हुए 20 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं. सो अगर कोई हमसे पूछे कि यूनिवर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है या कितने टाइम पहले हुआ था, सो दैट यूनिवर्स हैज इवॉल्व अराउंड 20 बिलियन ईयर्स एगो. यूनिवर्स आने के बाद उसके बाद हमारा अर्थ आया, क्योंकि यूनिवर्स में तो सारे प्लैनेट्स हैं ना, सन, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स हैं. यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स में एक बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. देयर आर मेनी गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. उसमें से एक गैलेक्सी है जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी. जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है, उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे ये सब अर्थ, जो भी हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं और सन की बात करते हैं, वो सब मिल्की वे गैलेक्सी में आता है. सो तो हम बोलते हैं यूनिवर्स. यूनिवर्स आया अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो. यूनिवर्स के अंदर हमारा अर्थ भी है, मार्स भी है, जुपिटर भी है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. बट उस गैलेक्सीज में से जो अर्थ आया, अर्थ कितने साल पहले आया, अर्थ आया 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. और इस अर्थ के अंदर जो पहली लाइफ थी, जो पहला लिविंग बीइंग था, अब वो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग कब आया. लाइफ मतलब जिसके अंदर जान है, तो वो कोई भी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, कोई भी फर्स्ट लिविंग सेल जो आया उसका ओरिजिन हुआ हमारा 4 बिलियन ईयर्स एगो. सो दिस इज अबाउट द बेसिक हिस्ट्री कि कौन सी चीज सबसे पहले आई और कब आई. इनके हमें ईयर्स याद रखने हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लाइफ है वो 4.4 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई है. सो हमें ये बात करनी है कि जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ. जितना भी हम मेन चीज पढ़ेंगे हम इस लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. पहले पढ़ेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, और फिर सेकंड पढ़ेंगे कि लाइफ ओरिजिन होने के बाद वो कैसे इवॉल्व हुई, कैसे उसमें चेंजेस आए. So we are going to study different theories जो describe करेंगी that how life has originated, and after completing those theories we will study about the next, which is the theory related to the earth, the life evolution. So अगर मैं आपको एक ब्रीफिंग दूं कौन कौन सी थ्योरी थी, जो थ्योरी ऑफ
ओरिजिन था, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। हम लाइफ के ओरिजिन की बात कर रहे हैं, हम अर्थ या यूनिवर्स के ओरिजिन की बात नहीं कर रहे। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ में देयर आर वेरियस थ्योरी। पहली थ्योरी आती है, ये एक वन बाय वन वी विल स्टडी सम स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड टू ईच एंड एवरी थ्योरी, कि कैसे कौन सी थ्योरी एक दूसरे से अलग है। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ने हमें कहा कि जो लाइफ है हमारी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ने क्या बोला? स्पेशल, कोई स्पेशल सी चीज है, उसकी हेल्प से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। और वो स्पेशल सी चीज क्या थी? वो थी गॉड। गॉड ने इस लाइफ को क्रिएट करा है। बट ये तो बहुत पुरानी थ्योरी है। गॉड ने लाइफ को क्रिएट करा है, बट गॉड ने कैसे किया है? कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे ना, उन चेंजेस के बारे में बात नहीं करा। इसने सिर्फ एक चीज बोली कि एक स्पेशल, एक पर्सन है, एक स्पेशल चीज है, एक स्पेशल कोई यूनिवर्स में कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसने लाइफ को क्रिएट करा, एंड दैट स्पेशल वन इज कॉल्ड एज गॉड। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डिस्क्राइब करता है कि गॉड ने लाइफ को ओरिजिनेट करा, बट बिकॉज इसका कोई रीजन नहीं है ना। तो नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेंसपर्मिया थ्योरी। पेंसपर्मिया थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी टॉक अबाउट दैट हमारी जो लाइफ है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। हम बोल रहे हैं इस प्लैनेट अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। पेंसपर्मिया ने बोला कि बाहर से कोई, इस अर्थ के बाहर से कोई लाइफ थी, वो अंदर आ गई, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चलते हुए अंदर आ गई। मतलब ये जो थ्योरी है बहुत वेग थ्योरी है, इनकी कुछ रीजन नहीं है, बस रैंडम थ्योरी है कि हाँ गॉड ने बना दिया लाइफ, बट गॉड ने कैसे बनाई, कब बनाई, किसी को कुछ नहीं पता। सो ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। फिर पेंसपर्मिया थ्योरी आई, उसने बोला कि अर्थ के ऊपर एक आउटर स्पेस से कोई एक लाइफ आ गई और उससे हमारा लाइफ का ओरिजिन हुआ। आउटर स्पेस मतलब कोई एलियन, बाहर से कोई एलियन आ गया अर्थ के ऊपर और उसने लाइफ को क्रिएट कर दिया। बट अगेन लोगों ने इसको, इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसे कैसे कोई बाहर से आ गया, बाहर से आया तो कहाँ से आया, आया तो कैसे आया। इन सब चीजों को इस थ्योरी ने आंसर नहीं करा, तो ये थ्योरी अगेन डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं which we need to understand properly. Next theory is called as theory of spontaneous generation. What does spontaneous generation means? Spontaneous generation, इसी थ्योरी का दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस थ्योरी, बोथ आर सेम। अब एबायोजेनेसिस का मीनिंग क्या हुआ? एबायोजेनेसिस का मीनिंग है ए बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, किसी भी चीज का सिंथेसिस होना, किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना। बायो मतलब लाइफ, और ए टर्म आ गया मतलब नहीं, लाइफ नहीं है। मतलब बायोजेनेसिस कोई अगर हमें बोलता है उसका मतलब है लाइफ की सिंथेसिस होना। ए बायोजेनेसिस मतलब लाइफ नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है। सो ये थ्योरी बोलती है दैट अ लिविंग थिंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। लाइफ हम सबको पता है, लाइफ इज अ लिविंग मैटर। ठीक है, लाइफ क्या होता है? लाइफ लिविंग मैटर होता है। अब लिविंग मैटर उन्होंने कहा कहाँ से आया? वो किसी ना किसी नॉन लिविंग मैटर से आया है। उन्होंने कहा कोई नॉन लिविंग मैटर है और उसकी हेल्प से लाइफ आई है। क्यों नॉन लिविंग? क्योंकि ए बायो मतलब सिंथेसिस कैसे हो रही है? यूजिंग ए बायो, मतलब नॉन लिविंग मैटर की हेल्प से सिंथेसिस हो रही है। किसकी? लिविंग थिंग की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमने क्या करा, हमने एक जगह पर स्टोर करके ग्रेन रखे हुए थे। ये एक एरिया था, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ग्रेन रखे हुए थे। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन होता है अनाज। अनाज को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। अब उसने क्या बोला कि माइस स्पॉन्टेनियसली अपीयर इन द स्टोर्ड ग्रेन।
हमने ये ग्रेन, इस जगह पे ग्रेन पड़े हुए थे और कुछ टाइम बाद आकर हमने देखा इस जगह पे माइस आ गए। माइस क्या है? माइस इज अ लिविंग मैटर। लेकिन वो कहां पर आ गए? वो ग्रेन के पास आ गए। ग्रेन मतलब नॉन लिविंग, ग्रेन तो नॉन लिविंग है ना। तो उन्होंने बोला जब हमने एक रूम में ग्रेन को रखा, वहां पर कुछ टाइम बाद हमने देखा माइस आ गए। सो ग्रेन इज अ नॉन लिविंग मैटर एंड माइस इज अ लिविंग मैटर। सो नॉन लिविंग मैटर की हेल्प से लिविंग मैटर अराइज हो गए। सो दिस मीन्स कि पहला जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम अ नॉन लिविंग मैटर। नेक्स्ट थ्योरी उन्होंने क्या बोली? नेक्स्ट थ्योरी उन्होंने कही, उन्होंने एक जगह पर किसी भी मतलब प्लेट में मीट रखा। मीट रखा, कुछ टाइम बाद, एक आधे दिन बाद वो आए और उन्होंने कहा यहाँ पे मैगॉट्स आ गए। मैगॉट्स क्या होता है? मैगॉट्स छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे फ्लाइज होती है ना, वैसे ही मैगॉट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने कहा मीट क्या है? मीट इज मेड अप ऑफ एनिमल फ्लैश, बट सिंस इट इज मेड एनिमल फैट से, एनिमल की फ्लैश से तो बना है, बट मीट क्या है? मीट, उसको एनिमल की फ्लैश को हमने अच्छे से पका दिया तो वो तो किल हो गया ना। सो मीट इज अ नॉन लिविंग मैटर। और इस नॉन लिविंग मैटर के ऊपर कुछ टाइम में मैगॉट्स आके चलने शुरू हो गए, उसके ऊपर आ गए, उस प्लेट के ऊपर मैगॉट्स आ गए, मतलब लिविंग मैटर आ गया। So that means non-living thing से living thing arise हो गई। So this is the theory of abiogenesis or the theory of spontaneous generation। क्यों है इसका नाम spontaneous generation? कि spontaneously एकदम से जनरेट हो गई। ये नॉन लिविंग मैटर पड़ा था और कुछ एक आधे दिन में स्पॉन्टेनियस एकदम से कोई चीज जनरेट हो गई। तो लिविंग थिंग एकदम से जनरेट हो गई। So that's why it is called as spontaneous generation। ये पॉइंट सबको क्लियर है? थ्योरी ऑफ spontaneous generation or the theory of abiogenesis, is it clear to everyone? Is it clear to everyone or anyone has any doubt? सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? Is it clear to everyone? बाकी सब बताओ। ओके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? अभी उन्होंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ आ जाए। So there are few theories which came into existence and they disapproved। इन्होंने क्या किया? इन्होंने disapprove किया theory of abiogenesis or the theory of spontaneous generation। There are three important theories। One is given by फ्रांसिस्को रेड्डी, मतलब 3 एक्सपेरिमेंट, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने ये करके बताया कि नॉन लिविंग मैटर से कभी भी लाइफ नहीं आ सकती। तो वो कौन कौन से लोग थे? सबसे पहला था फ्रांसिस्को रेड्डी, दूसरा था स्पल्जानी, these are the name of the scientists, and third one and the main one who disapproved this theory, and the third one or the main one who disapproved this theory was the Louis Pasteur। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक करके एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव करा। तो 3 साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। दिस लुइस पैस्चर इज द मेन वन, कि उसकी थ्योरी से 100% श्योर हो गया कि यस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इज रॉन्ग। he did his experiment in 1800 और वो लेकर आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का स्टार्ट किया था। बायो मीन्स, देखो जैसे हमने ए बायो पढ़ा था वैसे बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। तो लाइफ की सिंथेसिस लाइफ से ही हो रही है। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस टॉक अबाउट सिंथेसिस ऑफ लाइफ फ्रॉम अ लाइफ। एक बायो से, लाइफ से सिंथेसिस हो रहा है लाइफ का। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर या अकेले अकेले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने प्रूव करा कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ नहीं आ सकती। तो अगर हम एक एक करके तीनों पर्सन के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो पहला वन था
फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसने बहुत सारे जार्स लिए, एक जार लिया, दूसरा जार लिया, तीसरा जार लिया, एक को उसने फुली कवर्ड कर दिया, पूरा अच्छे से कवर कर दिया, दूसरे को खुला छोड़ दिया और दूसरे को हाफ कवर्ड करा। They have taken jars. इसमें उन्होंने मीट डाल दिया, मीट, मीट एंड मीट। अब क्या किया, उसने पहले मीट डाला यहाँ पे और फिर इसके अंदर की पूरी एयर, वैक्यूम से पूरी एयर को रिमूव कर दिया कि यहाँ पे कोई एयर ना रह सके। वैक्यूम लगाया और एयर को रिमूव कर दिया। इस वाले जो कवर्ड जार था, जो बिल्कुल कवर्ड था, उससे एयर को रिमूव कर दिया। ये जो अनकवर्ड वाला है, उससे तो एयर को रिमूव करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा एयर के कांटेक्ट में है। तीसरे वाले से भी एयर रिमूव करके क्या करेंगे, जो हाफ कवर्ड होगा, बिकॉज साइड से एयर अंदर चली ही जाएगी। तो उन्होंने जब ये 3 जार्स रखे और उन्होंने कुछ दिन बाद आकर देखा, तो उन्होंने कहा इन दोनों जार्स के अंदर मैगॉट आ गए, मैगॉट अराइजेस, मैगॉट आ गए। लेकिन जो ये फुली कवर्ड जार था, जिसके अंदर से हमने एयर को रिमूव कर दिया था, वहां पे नो मैगॉट अराइव, कोई भी मैगॉट नहीं अराइव हुए। सो इस थ्योरी से क्या पता चला कि जो ये एयर है, ये एयर अपने साथ छोटे छोटे माइक्रोब्स लेकर, क्योंकि एयर के अंदर माइक्रोब प्रेजेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कोरोना वायरस है तो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, वायरस इज देयर इन योर एयर। तो अगर आप एयर को इनहेल करोगे तो वायरस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आएगा। सो बिकॉज दिस जार इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर, तो जैसे ही एयर अंदर आएगी उसके अंदर छोटे छोटे जो माइक्रोब्स हैं वो अंदर आएंगे। और मीट, मीट इज अ फ्लैश, मीट खाना है, तो अगर हम किसी माइक्रोब को खाना देंगे तो उसका नंबर इंक्रीज होगा और वो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब हमें, अगर मैं खुद को एग्जांपल ले लूं, मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो वी वन और द अनदर डे, हम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना स्ट्राइक पे रह सकते हैं, बिना खाए रह सकते हैं, बट इवेंचुअली जब मेरा पूरा बॉडी का फैट स्टोर खत्म हो जाएगा, आई विल डाई। सो हर इंसान को ग्रो करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए खाना चाहिए होता है। सो मीट इज अ फूड, मीट एक फ्लैश है, फूड है। सो उसके ऊपर खाना, उसके ऊपर जैसे ही माइक्रोब आएंगे, उनको खाना मिल गया, वो अपना नंबर फ्लरिश करेंगे और वहां पे मैगॉट्स राइज हो जाएंगे। ऐसे ही जो ये हाफ अनकवर्ड था, उसमें भी यही था कि एयर का अंदर जाने का तो रास्ता है ना, चाहे थोड़ा सा कवर्ड है, बट देयर इज स्टिल सम एरिया व्हिच इज ब्लैंक, वहां से एयर अंदर चली जाएगी और जब वो अंदर जाएगी, माइक्रोब को अपने साथ लेके जाएगी और वहां पे माइक्रोब की ग्रोथ होगी। सो इस तरीके से उन्होंने बोला दैट मैगॉट डिडंट कम फ्रॉम मीट, वो मीट से नहीं आए। उन्होंने जो जो पहले एक्सपेरिमेंट था, जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, उन्होंने क्या कहा था, मैगॉट कहाँ से आ रहे हैं, मीट से आ रहे हैं। बट इन्होंने कहा मैगॉट डिडंट कम फ्रॉम मीट, बट दे कम फ्रॉम द टाइनी एग्स, जो छोटे 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 टाइनी एग्स थे दैट फ्लाइड विद द एयर, that has causes the development of maggot. So maggot का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो छोटे छोटे एग्स एयर में हैं, वो जब मीट के ऊपर आएंगे तो वो ग्रो करेंगे। तो दैट मीन्स जो मीट है, जो नॉन लिविंग मैटर है, उससे लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही, बट दैट नॉन लिविंग थिंग इज हेल्पिंग द लिविंग थिंग टू टू गेट अ लाइफ। मतलब लाइफ इंक्रीज करने के लिए नॉन लिविंग थिंग का जरूरत होती है, खाने की जरूरत है हमें अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना साइज बढ़ाने के लिए। बट अगर खाना नहीं है तो हमारा नंबर या साइज नहीं बढ़ेगा। बट खाना सिर्फ खाना होने से ऐसा नहीं होगा कि खाने से लाइफ आ रही है, खाने से लाइफ नहीं आएगी। तो फूड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, मीट इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल, वो हेल्प कर रही है ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, बट इट इज नॉट हेल्पिंग इट टू अराइज, मतलब उसको जन्म लेने में हेल्प नहीं कर रही। So this is how Francisco Reddy disapproved the theory of spontaneous generation. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? ये theory clear है, ये experiment clear है फ्रांसिस्को रेड्डी का? Is this experiment clear to everyone?
So next come what Spalzani did. उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने मीट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ब्रॉथ के साथ। ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ एक मीडिया होता है, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन मीडिया। मीडियम होता है ब्रॉथ, इट इज ब्रॉथ इज अ न्यूट्रिशन मीडिया। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फर्मेंटेशन में पढ़ा होगा कि हम एक माइक्रोब को डाल देते हैं न्यूट्रिशन मीडिया में। मीडिया में आपका कार्बन का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स है, फास्फोरस का सोर्स है, मतलब सारे मेन चीजें जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सब उसमें प्रेजेंट होगी। So broth is a nutrient medium which contain carbon source, nitrogen source, phosphorus source, sulfur source, सब चीजों का सोर्स होता है। So broth is also acting as a food, खाना। जैसे मीट, जैसे फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट में जो मीट था उसने प्ले किया रोल न्यूट्रिशन मीडिया का, ऐसे ही यहाँ पर स्पेल्जानी के एक्सपेरिमेंट में ब्रॉथ विल एक्ट एज अ फूड सोर्स, न्यूट्रिशन मीडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम यही चीज, उन्होंने जार्स लिए या फनल्स, कुछ भी बोल सकते हो, उन्होंने छोटी छोटी ट्यूब्स ली, इसमें उन्होंने ब्रॉथ डाला, फिर इसमें उन्होंने ब्रॉथ डाला, फिर इसमें उन्होंने ब्रॉथ डाला। सेम एक्सपेरिमेंट था जो फ्रांसिस्को रेड्डी ने किया था, बट द डिफरेंस वाज फ्रांसिस्को रेड्डी यूज्ड मीट एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मीडिया, whereas Spalzani used broth as a medium, as a nutrition media. So ये हमारा फ्लास्क था, फ्लास्क के अंदर ब्रॉथ डाल दिया, एक को कंप्लीटली सील कर दिया, एक को अनसील्ड करा, एक को हाफ सील्ड करा। तो बताओ किस वाले में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में किस में ग्रोथ नहीं होगी? आउट ऑफ 1, 2 एंड 3 किस में ग्रोथ नहीं होगी? 1 में नहीं होगी, 2 में नहीं होगी, 3 में नहीं होगी। In which of the flowers there won't be any growth? बताओ 1, 2, 3 में से कौन से फ्लावर्स में ग्रोथ नहीं होगी? Out of these 4, in which of the flowers there won't be any growth? Yes, 1 एक ऐसा ब्रॉथ है जिसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। क्यों ग्रोथ नहीं होगी? क्योंकि वो कवर्ड है, बाहर से कोई एयर नहीं आ रहा और वो मतलब कवर्ड है, तो इस चक्कर में यहाँ पे ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी। The reason would remain the same as that of Francisco Reddy, but the only difference is that he has used this one which is co-seed completely. क्या पूछो निहारिका आप? हाँ, which is covered completely. Yes, one is covered completely, so उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगी। The reason behind this is same. तो उन्होंने यही बोला कि अगर ब्रॉथ से या मीट से ग्रोथ आनी होती, अगर इनसे ग्रोथ होती, नॉन लिविंग मैटर से अगर ग्रोथ होती, तो कब की वो ग्रोथ तीनों फ्लावर्स में हो जाती, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। But there must be a factor, other factor which is contributing to the growth. बट अभी भी साइंटिस्ट बिल्कुल कंप्लीटली अप्रूव नहीं हुए थे। Then come the final theory which was given by Louis Pasteur. This is the most important theory which gave the theory of biogenesis. Theory of biogenesis मतलब life came from a life. So इस theory ने क्या बोला? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फ्लास्क लिया, इसकी फ्लास्क को इसने स्ट्रेट रखा, देखो स्ट्रेट फ्लास्क है। दूसरा क्या किया, उन्होंने एक फ्लास्क ली जिसका उन्होंने एस शेप्ड नेक ली, इसकी शेप थी एस शेप नेक। अब इसके अंदर दोनों में उसने ब्रॉथ को ऐड कर दिया, दे हैव एडेड ब्रॉथ, दोनों में ब्रॉथ डाल दिया। अब एक चीज बताओ, ये एक पाथ है जहां से मेरी अंदर मेरा एयर जाएगी, एयर के साथ साथ माइक्रोब भी इसके अंदर जाएंगे। बट टेल मी वन थिंग, जब ये यहाँ पर एयर प्लस माइक्रोब दोनों जाएंगे इसमें भी, बट वो आगे जाके टकराएगा, टकराने की वजह से माइक्रोब्स किल होते जाएंगे, फिर नेक्स्ट आगे और मूव करेगा, फिर ये टकराएगा। तो बार बार जब वो जार की नेक को टकराते हैं ना, तो माइक्रोब्स इवेंचुअली किल हो जाते हैं।
ठीक है। सो इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही एस शेप नेक थी, उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ एयर को अंदर ट्रैवल करने दिया, क्योंकि एयर कैन ट्रैवल इन एनी मीडिया, कहीं से भी किधर से भी पास कर सकती है, बट माइक्रोब को ट्रैवल करने के लिए एक स्ट्रेट पाथ चाहिए है जो उसको उसकी लाइफ के लिए डेंजर ना हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों चीजें आ रही हैं ब्रॉथ के पास, एयर भी आ रही है, माइक्रोब भी आ रही है। दिस इज द फर्स्ट केस। और ये हमारा है सेकंड केस, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेट नेक ना होकर एस शेप नेक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एयर आएगा ब्रॉथ के पास, बट जो माइक्रोब है वो नहीं आएंगे। साइड बाय साइड उन्होंने और भी वैसे लगाए कि एक स्ट्रेट फ्लास्क लिया, जो हमने पुराने एक्सपेरिमेंट पढ़े सेम जो स्पल्जानी ने करे थे, बट उन्होंने यहाँ पे फ्लास्क की शेप को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से माइक्रोब इस सेकंड वाले फ्लास्क में नहीं आ पाए। अब सोच के बताओ, फर्स्ट और सेकंड फ्लास्क में से किस फ्लास्क में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? आउट ऑफ दीज टू किस फ्लास्क में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? बताओ, 1 में नहीं होनी चाहिए या 2 में नहीं होनी चाहिए? किस वाले में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? बताओ, बाकी सब बताओ, किस वाले में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? 1 में और 2 में? 2 में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माइक्रोब रीच नहीं कर रहा, एयर इज रीचिंग। अगर एयर इज अ नॉन लिविंग मैटर, अगर एयर नॉन लिविंग मैटर से ग्रोथ हो रही होती, जैसे पहले जो एक्सपेरिमेंट में कहा कि एयर अंदर गया, एयर में माइक्रोब थी और उससे ग्रोथ हुई, तो लोगों ने बोला क्या पता एयर से ग्रोथ हो रही हो, माइक्रोब से ना हो रही हो। उन्होंने ये चीज बोली ना कि एयर पहुंच रहा है, एयर भी तो नॉन लिविंग मैटर है ना, तो हो सकता है एयर से ग्रोथ हो रही हो, ना कि आपके माइक्रोब से। तो हो सकता है नॉन लिविंग मैटर से ग्रोथ हो रही हो। तो इसीलिए लुइस पास्टर की थ्योरी ने बोला कि एक फ्लास्क में एयर और माइक्रोब दोनों जा रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और एक फ्लास्क में सिर्फ और सिर्फ एयर रीच कर रहा है। ऐसा नहीं कि एयर नहीं रीच कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एयर रीच कर रहा है। अब एयर रीच कर रहा है, एयर इज अ नॉन लिविंग मैटर, और अगर नॉन लिविंग मैटर की हेल्प से ग्रोथ अराइज होती तो इस सेकेंड वाले फ्लास्क में भी हमें कोई ना कोई माइक्रोब दिखता, बट बिकॉज नॉन लिविंग मैटर से कभी ग्रोथ हो नहीं, कभी भी ऑर्गेनिज्म अराइज नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे कि ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज रॉन्ग। सो दिस थ्योरी कंक्लूडेड दैट कोई भी नॉन लिविंग मैटर आपकी लाइफ को अराइज नहीं कर सकता, इट कैन नॉट अराइज योर लाइफ। जैसे हमने शुरू में मैंने आपको बोला कि हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ, वी आर स्टडिंग अबाउट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब ओरिजिन कैसे हो रहा है, मतलब फर्स्ट लाइफ कैसे आ रही है। तो फर्स्ट लाइफ हमें नहीं पता, हमने उन्होंने ये चीज कंक्लूड कर दी कि एयर से भी नहीं आ रही, मतलब नॉन लिविंग मैटर से देयर इज नो लाइफ कमिंग, so life is coming from a living matter only, so that's why they have approved the theory of biogenesis and they disapproved the theory of spontaneous generation. ये चारों थ्योरीज क्लियर है। फर्स्ट वन वाज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेकेंड इज स्पेशल क्रिएशन क्या था, गॉड ने बनाई। नेक्स्ट पेंसपर्मिया थ्योरी, जिन्होंने बोला लाइफ कहीं बाहर से आई है, किसी आउटर स्पेस से आई है। थर्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें उन्होंने 3 साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव करा। फर्स्ट वन वाज फ्रांसिस्को रेड्डी, सेकंड वन वाज स्पल्जानी एंड थर्ड वन वाज लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से ये श्योर हो गया कि लाइफ कभी भी नॉन लिविंग मैटर से अराइज नहीं हो सकती है, life would always come from a living matter only. So he gave the theory of biogenesis in 1800. यहाँ तक सबको क्लियर है? Is this clear to everyone? Is it clear to everyone? Is it clear? Ma'am, heating was also done to create sterilized condition by, you can say, देखो ऐसा सिर्फ एक चीज नहीं होती कि उन्होंने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया। अब देखो कुछ फ्लास्क कैसे भी होते हैं, देखो
जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बिल्कुल मतलब स्टरलाइज कर दिया, ताकि कोई जो ऑलरेडी कोई ऑर्गेनिज्म था वो वहां पे ना हो सके। बट मैंने आपको क्या बोला कि उन्होंने वैक्यूम से एयर को रिमूव कर दिया। सो देयर कैन बी मेनी वेज, ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक वे से करा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है, आपको एयर को रिमूव करना है, या तो आप वैक्यूम से रिमूव कर दो या फिर आप स्टरलाइजेशन कर दो। स्टरलाइजेशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को किल करना। अब स्टरलाइजेशन हीट की हेल्प से भी हो सकती है। हीट मतलब आप टेम्परेचर दे के आप स्टरलाइज कर रहे हो। अब हीट भी दो तरीकों की होती है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और दूसरा होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। सो यू कैन यूज एनी हीट, आप हीट को यूज कर सकते हो चीजों को स्टरलाइज करने के लिए, वहां से ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। आप फिल्ट्रेशन से भी स्टरलाइज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर कोई डिसइंफेक्टेंट, कोई ऐसा चीज जो उसको किल कर दे, वो भी यूज कर सकते हो। सो देयर आर वेरियस वेज जिसकी हेल्प से स्टरलाइजेशन होती है। सो ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट इसको करेगा इसको नहीं करेगा। तो साइमल्टेनियसली ना वो जब वो बहुत सारे फ्लास्क लगाते हैं, हम सिर्फ एक दो की बात करते हैं कि मेन जो होता है उसकी बात करते हैं, बट ऑटोमेटिकली वो बहुत सारी चीजें और भी फ्लास्क लगाते हैं जिसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से कुछ चीजों को लगाते हैं। सो यू कैन ऑल्सो से हीट से भी स्टरलाइजेशन हो सकती है, फिल्ट्रेशन से भी, वैक्यूम से भी, डिसइंफेक्टेंट से भी। क्लियर रिचा? क्लियर? अब नेक्स्ट चीज आती है, लुइस पैस्चर ने ये तो बोल दिया कि लिविंग थिंग से ही लाइफ आएगी, लेकिन भाई ये तो बताओ पहली लाइफ कैसे आई? हाउ डज फर्स्ट लाइफ केम? जो पहली लाइफ थी उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये हमें जानना जरूरी है कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। हाउ डज योर फर्स्ट लाइफ केम? देखो, स्पोर फ्री कंडीशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, स्टरलाइजेशन तो होगा ही होगा। मैंने आपको फर्स्ट फ्रांसिस्को रेड्डी में ही बताया कि उन्होंने जब इस फ्लास्क को कवर करा था, उससे पहले उन्होंने इसको स्टरलाइज करा था। मैंने कैसे बोला था, वैक्यूम से स्टरलाइज करा था। मतलब कोई भी जो पुराना ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने उसको रिमूव करा था। सो वो चीज हर केस में एप्लीकेबल होगी, क्योंकि अभी आपने इसको मतलब उसको फिल कर दिया, आपने उसको बंद कर दिया। बट अगर ऑलरेडी पहले कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर था, तो अब उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ा देगा। तो इसीलिए जब भी हम कंप्लीटली पैक करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, हम हमेशा कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए जब हम इस टाइप की चीजें करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले उसको स्टरलाइज जरूर करेंगे, ताकि पुराना कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर ना आ जाए। इसीलिए देयर आर चैम्बर्स होते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो चैम्बर्स होते हैं ऐसे बड़े बड़े, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। उस चैम्बर को पहले कंप्लीटली स्टरलाइज किया जाता है, ताकि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ना हो, वहीं पर ही ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट उस चैम्बर में भी होते हैं, जिसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। लेमिनार फ्लो वाले होते हैं, लेमिनार के चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए, हाँ वही लेमिनार फ्लो चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहां पर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रोब हो ही ना, जिसको आप स्टरलाइज करते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी का तो एक छोटा सा रूल है, जब भी आप माइक्रोब रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, आपको कंटामिनेशन को रोकना है किसी भी तरीके से। you have to remove the contamination, you have to sterilize it। जब तक आप इसको स्टरलाइज नहीं करोगे, एक छोटा सा भी जो माइक्रोब होगा ना, वो आपके सैंपल को खराब कर देगा। इवन अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करा हो, तो उन्होंने देखा भी होगा कि हम पिपेट्स यूज करते हैं। जैसे हमें सपोज हमें एक जार के अंदर, इस जार में अपना सैंपल डालना है, तो आप क्या देखोगे कि आप इसको जो पिपेट से डालोगे ना, ये पिपेट या आपकी इस वॉल को टच नहीं करनी चाहिए। अगर बाय चांस 1% चांस यहाँ पे कोई भी माइक्रोब होता, तो वो आपके पूरे सैंपल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो स्टरलाइजेशन तो सबसे नेसेसरी पार्ट है किसी भी माइक्रोबायोलॉजी के उसका। हाँ, एवरीथिंग इज स्टरलाइज।
सो इसीलिए ये चीज याद रखना कि आपको स्टरलाइजेशन तो करना ही करना है, चाहे आप किसी फ्लास्क को ओपन एयर में रख रहे हो, चाहे आप किसी फ्लास्क को क्लोज में रख रहे हो, बट माइक्रोबायो के कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना स्टरलाइजेशन के स्टार्ट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम अ लाइफ। ठीक है, लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। बट भाई ये तो बताओ पहली लाइफ कैसे आई? एक लाइफ थी, उससे नई लाइफ आ गई, उससे नई आ गई, ये समझ आ गया कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस होता है। बट ये जो पहली लाइफ थी वो कैसे आई? हाउ डज दिस फर्स्ट लाइफ टेक प्लेस? इसका पता लगाने के लिए एक थ्योरी आई जिसे हमने बोला केमिकल एवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी थी जिसने डिफाइन करा, जिसने डिस्क्राइब करा दैट हाउ द फर्स्ट लाइफ केम, पहली लाइफ आई कैसे। नाम से ही समझ आ रहा है केमिकल, कुछ केमिकल की हेल्प से लाइफ हैज इवॉल्व्ड। लाइफ हैज केम फ्रॉम सम केमिकल, कुछ ना कुछ केमिकल्स थे जिसकी वजह से कोई हमारा लाइफ आई। ये थ्योरी हमारी दी थी ऑपरेन and Haldane. They have given this theory in the year 1929. Opperin and Haldane gave this theory of chemical evolution in 1929. And next point came, who has done an experiment? इन्हीं के स्टूडेंट, ऑपरेन एंड हेल्डेन के स्टूडेंट थे जिनका नाम था स्टैनले मिलर। इन्होंने 1953 में एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने इस केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को प्रूव करा। तो थ्योरी दी किसने? थ्योरी दी ऑपरेन एंड हैल्डेन ने, बट उसको प्रूव किया था स्टैनले मिलर ने। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। सो अगर आपसे कोई पूछ लेना हु गेव द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, दैट वाज ऑपरेन एंड हेल्डेन। And who gave the experiment, who proved this theory, chemical evolution की थ्योरी को प्रूव किसने किया था? वो प्रूव किया था with the help of Miller-Urey experiment in 1953। अब ये थ्योरी बोलती क्या है? What does this theory say? ये थ्योरी क्या चीज बताती है? Chemical evolution by Opperin and Haldane in the year 1929। आपकी chemical evolution की थ्योरी थी जो दी ऑपरेन एंड हैल्डेन ने। इन्होंने बोला लाइफ हैज ओरिजिनेटेड। लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई? लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स और द लाइफलेस अर्थ under different environment. What does it stand for? उन्होंने बोला जो ये लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना, ये कुछ छोटे छोटे सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है। अगर केमिकल मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है मतलब कहीं ना कहीं कोई नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हुई है। बट हमने तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जिस इन्वायरमेंट में ये हुई थी वो आज वाला इन्वायरमेंट नहीं है। हमने जो लुइस पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट करा या जो फ्रांसिस्को रेड्डी ने करा या जो स्पल्जानी ने एक्सपेरिमेंट किया वो आज वाले इन्वायरमेंट में करा है, which was very very different from the primitive environment। शुरू में जो फर्स्ट लाइफ आई थी which was 4 billion years ago, उतने साल पहले जो इन्वायरमेंट था वो वैसा नहीं था जो आज का इन्वायरमेंट है। इसीलिए अगर हमें कोई थ्योरी बतानी है कि कैसे फर्स्ट लाइफ आई तो हमें उस पुराने वाले इन्वायरमेंट को, जो उस टाइम में इन्वायरमेंट था वैसा इन्वायरमेंट का एक चैम्बर बनाना पड़ेगा और वहां पर हम देखेंगे क्या हुआ, लाइफ कैसे आई,
क्या कोई लाइफ नॉन लिविंग मैटर से आई या नहीं आई। सो उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कहा कि ये ठीक हो सकती है। वो अभी गलत क्यों प्रूव हो रही है, क्योंकि अभी का एनवायरनमेंट बहुत 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 डिफरेंट है एज कंपेयर टू आवर अर्लियर एनवायरनमेंट। So we have to also take into account the environmental condition which are persisting here. So यहाँ तक सबको समझ आया, यहाँ तक सबको समझ आया that what the chemical evolution is saying. Chemical evolution is linking, वो लिंक कर रहा है आपकी, किस चीज को लिंक कर रहा है, आपकी थ्योरी ऑफ, कहीं ना कहीं वो कह रहा है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ठीक हो सकती है। क्यों ठीक हो सकती है, क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंट करे, लुइस पास्टर ने जो एक्सपेरिमेंट करा वो अभी के एनवायरनमेंट में किया, which was very very different from the primitive environment which existed 4 billion years ago. So first you have to mimic that environment and then you can say कि life कैसे आ रही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ एक और फैक्टर है जिसको आप मिस कर रहे हो, दैट इज द चेंज इन द एनवायरनमेंट। जो 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। मैं रिडक्शन समझाऊंगी कैसे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। आज की डेट का जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, हमारे एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन किसी भी चीज के वो अट्रैक्ट कर लेगी तो ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑक्सीजन इजीली एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो उस ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो अभी का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग है। बट जो 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले एनवायरनमेंट था वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का गेन इज द रिडक्शन गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन अगर अट्रैक्ट करेगा तो रिडक्शन होगा। सो तब के एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन था तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। अभी का एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। सेकेंड डिफरेंस इज अभी का टेम्परेचर बहुत ऑप्टिमल है, 25, 30, 40 डिग्री सेल्सियस है। तब का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई टेम्परेचर था। तो उसमें चीजें अलग तरीके से इवॉल्व हुई हैं जो अभी की एनवायरनमेंट में हो रही हैं। तब के एनवायरनमेंट में वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट था, अभी वाटर इतना ज्यादा एयर में प्रेजेंट नहीं है। वो जमीन पे प्रेजेंट है बट एयर में नहीं है। तब वाटर का बहुत रोल था। तो हम ये सब चीजें पढ़ेंगे कि तब के एनवायरनमेंट में और अब के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस थे, और उन चेंजेस को स्टैनली मिलर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वो सब मिमिक करा और उन्होंने देखा कि नॉन लिविंग मैक्रो मॉलिक्यूल से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहां तक सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? किसी को कुछ डाउट है, यस और नो? क्लियर, ठीक है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि बिकॉज यू हैव अ नेक्स्ट क्लास आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच।